So we are going to say in isodiapers, we are going to say what is the difference between neutron and proton. So let's say I will take the example of let's say fluorine. Fluorine is having 9 and 99. 19. Right? 9 is atomic number and 19 is atomic mass. So if 19 means what is going to be happen? Neutron plus proton is 19 and proton is 9. So can you calculate what is neutron? Neutron is 10. Okay. Now what is the difference between neutron and proton? So neutron and proton difference is 10 minus 9, that is 1. Now if all those elements who are having neutron or proton difference is going to be same, all those are going to be isodiapers. So let's say if I'm going to write one example, let's say 3Li7 lithium, right? So what will happen here? Neutron plus protons are 7. Protons are 3. So neutrons are going to be 4. So n minus p is going to be 1. So wherever we can see this part, then we are going to say all those are isodiapers. Another simple way of, let's say, calculating this is that let's say if I am going to n minus p में हमें ये निकालना है. If I am going to add p both side, ठीक है, मैंने यहाँ ऐड किया तो ये subtract में चला गया, right? So that is nothing but same thing. N plus p is nothing but a, है ना, atomic mass, and minus 2p, p मतलब होता है z, so minus 2z. So rather than calculating n minus p, but just by calculating n and p, we can directly say कि a minus 2z की वैल्यू देख लो. a की वैल्यू कितनी है 19, 2z की वैल्यू कितनी हुई? So that is nothing but 1, right? Over here 7 minus 2 into 3, that is nothing but 1. So that is isodiapers. समझ में आ गया भाई? जो पूछ रहे थे isodiapers नहीं समझ में आ रहा है? Please say yes. Yes sir. Okay. चलो. Sir, और हाइड्रोजन 1 और कार्बन 12 भी आइसोडाइफर्स हुए फिर? हाइड्रोजन 1, हाँ, प्रोटियम और कार्बन 12. तो यहाँ न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना. अच्छा, कहानी है ना. तो फिर ड्यूटेरियम और मतलब जहां पे भी ऐसा होगा वो सब आइसोडाइफर्स. So alpha particles has same characteristic as helium nucleus, or it is the helium nucleus? Good question. तो अल्फा पार्टिकल जो है ना, that is having charge is equals to 2 and mass is equals to 4. So what is we are saying is कि it is looks like helium nucleus. ठीक है. What is the property of helium nucleus? भाई हीलियम जो है वो वैसे भी अनरिएक्टिव है, तो you can say कि अल्फा पार्टिकल and helium nucleus are same thing. Generally what happens is sometimes we also say if helium nucleus is going to acquire the electrons, then it is going to behave as alpha particles are going to acquire the electrons, then we are going to say it is going to be like helium gas. It is going to be like helium gas अगर वो electron acquire कर लेता है तो. ठीक है. Advait, I have put you into the waiting room because you have not replied. So can you reply now or I will remove you? I cannot permit students who are not going to reply me. No. I can simply see that you can join and you can listen to me, but you choose not to reply. बताओ भाई कौन हो तुम? आ जाओ. Raise your hand. If you have any problem, then message me in the chat. Message me on WhatsApp. Where you have message? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ?
ऐसे शर्माओगे तो फिर कैसे चलेगा काम? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो अपना नंबर दो, लेट्स से आई विल कॉल यू, आई विल हियर व्हाट यू हैव टू से, गिव मी योर नंबर। गिव मी योर नंबर, आई विल लिसन टू यू। Sorry sir, what is the meaning of sorry? I am asking your number now, give me your number. I know you were lying कि तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। केवल बैठने नहीं आ सकते हो क्लास में कि हम बस सुन लेंगे। If you are not interacting and if you are hiding तो ये नहीं चलेगा। तो दो ना क्वेश्चन अपना नंबर मुझे, मैं तुम्हारी यहाँ वॉइस सुन लूंगा। I will listen. रिवाइज करके नहीं आया हो बताओ, नंबर भी नहीं दे रहे हो, ना शर्मा रहा है लड़का। See, you again, whoever is, let's say, over here is present. I want you to be like, यार interact करो, ठीक है ना? जो बच्चे अपने आप को छुपाते हैं ना, राइट, वो छुपे रह जाते हैं। पहले आप छुपोगे, फिर इतना सिलेबस आगे बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा आप कैसे होगा। नेक्स्ट टाइम तो मुझे खुद ही से बताओगे, तुम्हारा माइक ऑन होना चाहिए, फिक्स कर लेना, ठीक है? चलो भाई, हाँ बोलो। शिवम, श्रेया, शिवम, सिद्धांत। देखो इसमें तो दो, कितने नाम है? दो नाम हो गए यार, मतलब। Sir, like H is hydrogen, then what is TH? TH is thorium and U is uranium. Yes, Shreys, बोलो भाई, you can unmute yourself. You have any doubts, Shreya? Okay, no doubts. Yes, Chintan, what is your doubt? Like adjustment, you can unmute yourself. Yes. सर आपने देखो फर्स्ट लेक्चर में एक सोप बबल का एग्जांपल दिया था। क्या? सर सोप बबल फ्लूइड के सरफेस पे है, हाँ। तो उस पे 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और फ्लूइड पे 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसका साइज बड़ा हो गया। करेक्ट। उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज जो पूछा था आपने। हाँ, तो वो मैंने लास्ट क्लास में क्लैरिफाई किया था कि सेम चार्ज है ना। हाँ तो सेम सर चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस इंटू माइनस इज गोइंग टू बी प्लस, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 by R एंड द साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अगर तो R टाइम बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। वही मेरे को डाउट था सर, आपने वो दिन बढ़ेगा बोला था। हाँ, मैंने बढ़ेगा बोला था, तो लास्ट हाँ क्लास में क्लियर किया था ये बात कि घटेगा, है ना? I think I have taken one is negative and another one is positive like that, ऐसा कुछ मान लिया था कुछ, वही मेरे को डाउट था, तो वो गलत हो गया था, वो नहीं होना डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। चाहिए। ओके, ठीक है। तो भाई ये तो वही, ये आप लोगों ने लिखा है। अब बात आती है वो है रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है? तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के आए हो सब लोग, राइट? एक मिनट, लेट मी ओपन द एनसीईआरटी क्योंकि थोड़ा थ्योरी है। सो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने सिंपली आई वाज सेइंग इज, एक मिनट, यस। तो रदरफोर्ड जो है वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे एंड ही वाज चेकिंग कि भाई ये अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर क्या है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है कि ये, मतलब यहाँ से मैं छोड़ूं और ये आर पार निकल जाए, राइट? नाउ अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर काफी कम होती है एंड द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाज कि अल्फा रेज बड़े हैं और तब तक थॉमसन का मॉडल वेल, मतलब ठीक है, किसी ने काटा नहीं था,
तो दैट मीन्स कि देखो भाई ये जैसे मान लो ये मैं एक थिन फिल्म ले रहा हूँ, तो इस थिन फिल्म में ये एटम्स होंगे एक के बाद एक ऐसे अरेंज, है ना। इन्होंने ये जो फिल्म ली थी वो दैट इज गोइंग टू बी it is like 10⁻⁷ मीटर, तो कुछ 10⁻⁷ मीटर के आसपास, और यू कैन से 0.4 माइक्रोमीटर कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे, राइट। तो इस रेंज में ली, बहुत पतली रेंज है ना, थिन फिल्म। नाउ इन दिस फिल्म यू कैन अज्यूम दैट कि भाई यहाँ पे एटम्स होंगे, है ना। एटम्स की रेडियाई 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के आसपास ऐसे वेरी करती है ना, डिपेंडिंग ऑन कैसा है, ऐसा माना गया। So you can see there is going to be a chain of, let's say, atoms, और all these atoms are having positive charge, है ना, मतलब पॉजिटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड। थॉमसन मॉडल में यही तो था कि पॉजिटिव जो है ना दैट इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो ही वाज थिंकिंग कि देखो अल्फा पार्टिकल जो ना, अल्फा पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज, वो इसकी तरफ आएगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन तो होना ही है, एंड दैट्स व्हाई these electrons, these alpha particles are not able to, let's say, penetrate, है ना, इसीलिए ये पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल था कि मान लो ये इस थिन फिल्म के लिए नहीं, ये नॉर्मल ऐसे कोई और थिकनेस, बड़ी थिकनेस हो जैसे 10⁻³ मीटर वगैरह वगैरह, तो he was able to understand, अच्छा इसलिए ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। ठीक है, so what he is doing is he is increasing the speed of alpha particle कि वह इतनी तेजी से है कि ये इसको चीरता हुआ चला जाए, राइट, और इट कैन ओवरकम द रिपल्शन पार्ट, और ये है ना इससे क्रॉस होके चला जाए। सो एंड अनदर थिंग इज ही इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द फिल्म। सो ही वाज ट्राइंग कि यार और पतली पतली फिल्म करते जाओ सो दैट इट कैन, लेट्स से, है ना, पेनिट्रेट। नाउ he has, when he has done this is sufficiently thick, let's say thin film we are having over here, तो देखा गया कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल जो है वो क्रॉस हो गए, और केवल 1% ही अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, है ना, 1% से भी कम। देन ही वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज फॉर हिज थिंकिंग कि क्या होना चाहिए था, ये जितना भी एटम्स हैं आपस में पैक हैं, तो इनके बीच में बस थोड़ा सा ये स्पेस है ना, थोड़ा सा ये स्पेस है, बीच बीच में पैकिंग होती है ना, पैकिंग समझते हो ना, जैसे मान लो एक बॉक्स है उसमें बॉल्स रखनी है, फुटबॉल्स रखनी है, लेट्स से, ठीक है 5 फुटबॉल है, सफिशिएंटली बड़ा है, तो तुम ऐसे फुटबॉल रखोगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस तो रह ही जाएगा ना बीच बीच में, यस और नो, ये अनऑक्यूपाइड। तो ही वाज थिंकिंग व्हाट हिज थिंकिंग वाज कि ये रिपल्शन लग रहा है तो केवल ऐसे अल्फा पार्टिकल ही पास कर पाएंगे जो सफिशिएंटली हाई इन एनर्जी हो और ये रिपल्शन कम पा रहे हो, है ना, डायरेक्टली जो अप्रोच कर रहे होंगे एटम की तरफ वो तो सब लौट जाने चाहिए थे, एक आधी % बस अल्फा पार्टिकल क्रॉस होना चाहिए था। दिस वाज हिज एक्सपेक्टेशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं क्या कह रहा हूँ, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, हाँ भाई ट्रैफिक में कहाँ हो? अभी तो लॉकडाउन। सर यस सर मतलब उन्होंने वो, उनको खाली मतलब ऐसा अजम्पशन था उनका कि वो रिपल होंगे, या फिर उन्होंने पहले थिक वाले के साथ एक्सपेरिमेंट किया? जैसे मान लो हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, हाँ, राइट, जो हम साइंस पढ़ रहे हैं जिस भी मोमेंट पे, तो हमें जो बातें पता है उसके बेसिस पे वी आर एबल टू एक्सपेक्ट कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, हाँ, जब वो नहीं होता है देन वी लुक फॉर द आंसर, यस और नो? यस सर। तो तब तक रदरफोर्ड जब ये बातें पढ़ रहे थे तब तक थॉमसन मॉडल ही आया था, यस, और कुछ तो बोला नहीं था। और थॉमसन ने बोला था कि भाई जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे सीड की तरह एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं बीच बीच में, यस, है ना। तो व्हाट हिज एक्सपेक्टेशन वाज कि देखो भाई अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है तो भाई वो तो रिपल्शन लगेगा ही लगेगा, एंड दैट इज द रीजन कि अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो क्या करते गए, अल्फा पार्टिकल की स्पीड बढ़ाते गए, थिकनेस कम करते गए, जस्ट इन दिस होप कि एक आध पार्टिकल लेट्स से क्रॉस कर जाए, है ना, कहीं बीच Yes, में से, कहीं से, है ना, बीच में जहाँ पे पैकिंग ना हो,
रिपल्शन कम लग रहा हो, वहां से क्रॉस कर जाए एक आध पार्टिकल, बट टू हिज सरप्राइज क्या हुआ, सारे के सारे पार्टिकल क्रॉस कर गए, है ना। केवल 1% या उससे भी कम परसेंट जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हुए। अब ये मुझे नहीं पता बेटा कि उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली और सिल्वर फॉइल क्यों नहीं लिया। आई थिंक जो भी इजीली अवेलेबल हुई होगी दैट ही हैज टेकन, है ना श्रेया। इसमें नहीं जाना है कि भाई ये यही क्यों ली, राइट। जो भी मैंने उस टाइम पे इजीली अवेलेबल हुई होगी उस पे किया है उन्होंने, है ना। तो हुआ ये यस, तो उनके सरप्राइज ये था कि यार सारे के सारे पार्टिकल अगर मान लो क्रॉस हो गए, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मास हो ही नहीं सकता पूरे तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एटम में। दैट इज दैट लेट्स से थ्योरी इज रॉन्ग कि जो एटम पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज उससे भरा पड़ा है, नहीं, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल डाले, लेट्स से 20,000, तो उनमें केवल एक ही था ऐसा जो वापस लौट के आया, है ना, वन जो 90 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री तक रिफ्लेक्ट हुआ। तो ही सेड कि यार जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसी पे सबसे ज्यादा रिपल्शन लगा होगा, है ना। जस्ट अज्यूम कि मान लो आई वाज सेइंग कि दिस इज एटम और इतना बड़ा लेट्स से न्यूक्लियस है विच इज सफिशिएंटली लार्ज कंपैरिजन टू एटम। तो मैं क्या करता, अगर मैं 100 पार्टिकल यूनिफॉर्मली भेज रहा हूँ लेट्स से, राइट, इन ए रेंज, है ना, मतलब ऐसे भेज रहा हूँ, तो जिस फ्रैक्शन से नंबर ऑफ पार्टिकल वापस आ रहे हैं वो मुझे कुछ तो आइडिया दे देगा कि ये न्यूक्लियस का साइज क्या है। क्योंकि जो डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आ रहे होंगे वो, है ना, वो रिपेल होंगे, जो ऊपर से जा रहे होंगे ऐसे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये तो होगा रिपेल्शन के कारण थोड़े से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यस और नो। यस सर। है ना। सर तो अब इन्होंने देखा कि यार हुआ ये कि केवल एक या दो पार्टिकल ही बस डिफ्लेक्ट हुए 190 डिग्री से ज्यादा और क्लोज टू 180 डिग्री। देन ही अंडरस्टैंड कि यार आउट ऑफ 20,000 एक या दो हो रहे हैं, दैट मींस द न्यूक्लियस साइज इज वेरी स्मॉल, है ना। व्हाट इज द फ्रैक्शन, 1 आउट ऑफ 20,000 हो रहा है, राइट। So the size of nucleus in comparison to atom is very small. So this is one, let's say, observation he can find. Later on, he has concluded the size of nucleus is going to be around 10 to the power minus 15 meter, which is called Fermi meter, है ना, Fermi. ये 10 to the power minus 15 meter के बराबर होगा. And he also concluded कि जो atom की radii है वो 10 to the power minus 10 meter के आसपास आती है. So this is atomic radii. मैं बस समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, क्योंकि ये 10th में भी है, 9th या 10th में है, राइट। सो व्हाट आर द लेट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वो यू कैन लेट्स से अंडरस्टैंड। सो दिस इज न्यूक्लियस रेडियाई। ही वाज एबल टू फाइंड कि ये इस रेंज में आएगी, इसका मतलब ये नहीं एक ही, है ना, इसका मतलब है कि अलग अलग लेट्स से एटम के लिए जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो इस रेंज की होगी। यहाँ पे 1 × 10⁻15 हो सकता है, 10 × 10⁻15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। 20 × 10⁻15 हो सकता है। सो ही सेड कि ये इस रेंज में है 10⁻15 मीटर, है ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द लेट्स से व्हिच एलिमेंट यू आर टेकिंग। हाइड्रोजन लोगे तो ऑब्वियसली छोटा आएगा, यूरेनियम ले लोगे बड़ा है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ज्यादा है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा, राइट। जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, बस इसको समझ लो। रदरफोर्ड के बारे में क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जर्वेशन पे और उनकी पोस्टुलेट्स पे आते हैं, ठीक है, मल्टीपल करेंगे। सर हाँ, एक थोड़ा डाउट था, एटॉमिक रेडिया पिकोमीटर्स में मेजर करते हैं ना, यहाँ पे मीटर्स क्या क्या फिर से बोलना। नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही, आप बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है। कैन यू टाइप योर डाउट? यस, बोलो भाई। आर्यन, हाँ यस आर्यन, सर। हाँ हाँ सर वो
ये जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का हम लोग को बताया गया है कि ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉयल बिकॉज इट वाज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, तो उसको सबसे थिन शीट्स में बीट किया जा सकता था विदाउट इट ब्रेकिंग। ठीक है ना, मतलब मैं इसमें इम्पोर्टेंट मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि भाई ये यही क्यों लिया, राइट? दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल क्यों ले लिया, ठीक है? ओके सर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेलिएबल और भी नहीं हो सकते हैं, राइट? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है ना मेलिएबल। सिल्वर के वायर भी मेलिएबल होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज द ओनली रीजन, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। It's least reactive also. हाँ, It's least reactive also. लीस्ट Reactive. हाँ, दिस कुड आल्सो बी रीजन। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो उन्होंने, और फिर ऐसी बात तो है नहीं है कि हम मान लो यहाँ पे ऑक्साइड भी बन जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल को ऑक्साइड बनाने से, अगर मान लो कहीं पे मैं कह रहा हूँ कि लीस्ट रिएक्टिव की जगह एल्यूमिनियम मैंने ले लिया होता, वहां कुछ रिएक्शन हो जाती है, एल्यूमिना बन जाता, तो क्या हो जाता? हम तो केमिकल रिएक्शन करा थोड़ी ना रहे हैं। अभी पता नहीं होगा ना किसी को, मतलब क्या। सो आई थिंक कि इन सब चीजों में जाना कि ये गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू, इफ यू वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन सर्च एंड आइडेंटिफाई कि भाई क्यों लिया उन्होंने। देयर वुड बी सम रीजन, राइट? फिर किसी ने पूछा यार लेड प्लेट क्यों लिया, वी वांट टू फोकस इट। लेड क्या करता है? ब्लॉकिंग की तरह काम करता है ना? जब आप सोर्स से, किसी भी सोर्स से अल्फा पार्टिकल डाल रहे हो तो एक बीम की तरह जा रही होगी, राइट? यू वांट टू ब्लॉक द अदर, लेट्स से, सो दैट यू कैन से कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में और इतनी नैरो बीम की तरह जा रहे हैं, राइट? यू वांट टू ऑब्जर्व दैट, राइट, स्पेसिफिक। सो दैट्स व्हाई ब्लॉकिंग की तरह लेड प्लेट लिया गया। लेकिन अगेन क्यों चाहिए ये सब चीजें, है ना? कोई कहे ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लिया हमने यहाँ, राइट? सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, वो मैं बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है? चलो चलते हैं। यस, बोलो भाई। व्हाट इज योर नेम? रीतावन, ये यही प्रोनाउंसिएशन है और एनीथिंग एल्स? रीतावन? नहीं सर, रिताबानी है। सर ये रदरफोर्ड को पता कैसे चल गया कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? दिखता तो नहीं है ना अल्फा पार्टिकल? अरे वेरी गुड। तो यहाँ इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है, स्पार्क मिल जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट कैसे होती है? पुराने टाइम के वो देखे हैं, नेगेटिव्स ब्लैक ब्लैक हुआ करते थे, राइट? किसके बनते थे? AgNO3 के बनते हैं, राइट? सिल्वर के। नाउ जहाँ पे भी आपकी पिक्चर बनती है वहां पे क्या रहता है? वो थोड़ा वाइटिश रहता है। देखा है ना आप लोगों ने? यस और नो नेगेटिव्स? क्योंकि अभी इतनी पुरानी चीज हो गई है कि हो सकता नहीं भी देखा। सर तो जैसे वो कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने जिंक सल्फाइड यूज किया था एज अ फोटोग्राफिक फिल्म, तो वैसा ही चीज यहाँ पे वैसा ही, हाँ, और भी कुछ कर सकते थे, मतलब, है ना? तो यहाँ पे जहाँ पे टकराएगा वहां जहाँ पे इनको स्पार्क मिलेगा, मतलब एक, है ना, डॉट टाइप का मिलेगा, देन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड अच्छा क्या हुआ। Br इज ऑल्सो यूज, एक्चुअली वो AgNO3 के साथ Br की रिएक्शन कराते हैं, राइट? अनरिएक्टेड Ag को हटाते हैं। याद है पहले के टाइम में वो रेड लाइट में डेवलप करते थे, डेवलपर डालते थे, राइट? है ना? अगर उस नेगेटिव को ऐसे ही लाइट में डाल दोगे तो वो खराब हो जाता था, मूवीज में देखा होगा, राइट? हाँ, तो वो जो Ag होता है फिर वो उसको आप हटाते हो, जितने में प्ले आपका फोटो आना होता है, बस उससे ही रिएक्ट होना चाहिए डेवलपर का। उसे हटाते हो Ag को, वो हटाने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से हटाते हैं। तो Br से हटा सकते हैं, थायोसल्फेट से हटाते हैं, अलग अलग, ठीक है? चलते हैं अब आगे। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक जो हम समझा रहे थे कि भाई एक पार्टिकल
बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए. देन ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब. So he came to this conclusion कि most of the part of atom is empty. है ना, जैसे थॉमसन ने बोला वो सही नहीं है ना. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिल गया, इनको नहीं मिला. पता है रदरफोर्ड को इतना मैथमेटिकल मॉडल था, राइट. पूरा एक एक चीज कैलकुलेट किया था इन्होंने पूरा, बट इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला. तो ये होता है लक. तो थॉमसन ने भी वही अपने टाइम पे सही बातें कही, बट रदरफोर्ड को भी मिलना चाहिए था. और रदरफोर्ड के को ना मिलने के पीछे रीजन था मैक्सवेल. वो हम उस पे आएंगे ड्रॉबैक में. तो होता ये है जब आप कोई जैसे काम करते हो, है ना, जैसे रिसर्च में भी आजकल यही होता है. व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, ठीक है, तो then you will give a hypothesis. मैंने आपको पहले ही बताया था, right? You know what you have taken initially and what is the result you have find, and in between you have to fill the dots. तो आपको अपनी थ्योरी देनी होती है जो भी है. ऑब्वियसली कुछ साइंटिस्ट ने पहले काम किया होता है तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा होगा. लाइक रदरफोर्ड को ये आइडिया था कि पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पूरा न्यूक्लियस ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो रिपल्शन ऑब्वियस है, लगेगा ही लगेगा. ठीक है. तो साइंस में यही होता है कि व्हेन यू गिव ए like let's say model or any hypothesis you give or theory you give, the other people are going to study it and then they are going to raise some questions कि भाई ये जो बात आपने कही वो कैसे भाई कही, है ना, right, kind of. So what happened is when Rutherford said कि ऐसा ऐसा होगा कि like न्यूक्लियस में सब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन्स तो तब तक थे ही नहीं, प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी आउटसाइड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू लेट्स से ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम, जैसे अदर प्लैनेट्स आर रोटेटिंग अराउंड द सन. तो मैक्सवेल सेड कि अगर ऐसा होगा then electron is going to lose its energy and it will fall down, because according to Maxwell कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी भी चार्ज फील्ड में कोई भी पार्टिकल जा रहा है ना, तो अब मैक्सवेल ने क्या बोला वो बता देता हूँ. ठीक है, कि ऐसे नॉर्मल हम लोग सबको पता है ना रदरफोर्ड वाली ड्रॉबैक क्या था, वी आर लिटिल बिट जंपिंग इन बिटवीन, है ना. फिर से आऊंगा वापस रदरफोर्ड मॉडल पे, लेकिन सबको ये पता है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक, क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया यार. हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? यस सर. बोलो सर पहला जो आपने बोला मैक्सवेल का कि एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके वो गिरना चाहिए न्यूक्लियस में, पहला ड्रॉबैक था. और दूसरा ड्रॉबैक कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकता था एग्जैक्टली, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. यस. तो वेरी गुड. तो पहली बात तो ये थी कि मोनी सेड कि भाई पोजीशन नहीं पता थी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा. उन्होंने ये बात सही कही कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है. उन्होंने ही पहला टर्म यूज किया न्यूक्लियस, उससे पहले किसी ने न्यूक्लियस नहीं बोला था, राइट. सो ही सेड कि एक छोटा सा वो टाइनी सा फ्रैक्शन है और उसमें प्रोटॉन रहता है बिल्कुल सेंटर पे, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना. तो ही हैज नॉट लाइक गिवन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो कितना दूर है, बस ही सेड कि बाहर है. तो दैट मीन्स दिस इज इनएक्यूरेसी, बट इट इज नॉट द ड्रॉबैक काइंड ऑफ, इट इज समथिंग जो किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया. द मेन ड्रॉबैक वाज कि वो पार्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा न्यूक्लियस में, और वो क्यों हो जाएगा वो कोई मुझे बताएगा? सर न्यूक्लियस वाज एट दैट टाइम कंसीडर्ड कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स वर नेगेटिवली चार्ज, तो उनको लगा था कि ड्यू टू अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. करेक्ट. सो व्हाट ही सेड इज कि देखो भाई ये तो है आपके पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट, देन व्हाट विल हैपन फॉर मूवमेंट. अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, बिकॉज इट वांट्स टू कीप इन इट्स ओन पाथ. ये ऐसे मूव करना चाहता है और ये लगातार इसको अपनी तरफ खींच रहा है.
So what will happen eventually कि electron is going to lose its energy and it is going to fall in the nucleus. This was the reason, है ना. Maxwell said कि oppositely charged फील्ड में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स. ठीक है, पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन. तो भाई मान लो मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूँ और तुम्हें अपने पाथ पे रहना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट. ठीक है, you have to work against it means you have to lose its your energy, कुछ पार्ट एनर्जी का लूज करना पड़ेगा just to be on your path. तो क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी and then eventually electron is going to fall down in the nucleus. और अगर ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो न्यूट्रल में हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो फिर तुम्हारे मॉडल के हिसाब से जो एटम है वो स्टेबल कहाँ हुआ. So he cannot explain the stability of nucleus or you can say atom. This was the problem. ठीक है, एक रीजन ये. मैक्सवेल ठीक है. सोहम एनसीईआरटी में बोर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है यार बोर, देख लेते हैं. तुमने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, कहाँ पे जहाँ पे ड्रॉबैक होंगे ना वहां पे देखो. ये तो पोस्टुलेट लिखी हुई है राइट एंड दिस इज दिस ओके. सो ड्रॉबैक यहाँ लिखे ही नहीं है बेटा, ओनली दे हैव सेड कि ये देखो ये प्रपोज्ड किया है ना. इफ आई एम मिसिंग सम पॉइंट देन आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कहीं और लिखा हो फिर, है ना. इधर नहीं है यार, ये लिखा हुआ है. सो मैक्सवेल राइट इधर. ठीक है, सो ही सेड कि देखो यू जस्ट हैव टू रीड इट कि मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड emit electromagnetic radiation. This feature does not exist for planets since they are uncharged. तो ही सेड कि planets में तो चार्ज है ही नहीं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है राइट. वहां वो नहीं गिर रहे हैं, यहाँ ये गिर जाएगा राइट. So you have to read here. ठीक है, आदित्य आपका आंसर अभी आ गया है ना. So he could not explain the reason. See what later on we know that Rutherford said whatever Rutherford said was true. We cannot, let's say, counter the points or questions raised by other scientists. तो उस टाइम के लिए वो मॉडल फेल हो गया. उस टाइम के लिए वो मॉडल क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि जो अच्छा इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो फेल हो गया उस टाइम. स्पेस मॉड्यूल में भी नहीं है यार कुछ भी, मतलब ठीक है. सो हम वी आर नॉट लुकिंग प्रॉपरली. स्पेस मॉड्यूल में भी ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पे बोर लिखा है. जिसने मैक्सवेल ने दिया है तो मैक्सवेल का ही आएगा ना नाम. सर आई थिंक बोर ने मॉडल फिक्स किया था, वो बोल रहा है. बोर वाज द लेट्स से स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड. ठीक है, वो रिलेटेड है, ही ऑलरेडी नो कि क्या काम कर रहे हैं राइट. बोर यस बोर इज गिवन ओके. भाई देख लेते हैं हम भी कहाँ पे. तो अगर आई थिंक देन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. अगर ये बोर का लिखा हुआ है लेट्स से तो वो वहां पे देख लेते हैं. इसमें इम्प्रूव किया लिखा है. So stability of atom, हाँ यार ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, that is wrong. ठीक है, anyway चलो हम ये सब इसमें नहीं पढ़ते हैं राइट. सो आप एनसीईआरटी ये यहाँ से पढ़ लेना. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी ये थ्योरी वगैरह आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना राइट. सो व्हाट आर द लेट्स से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, उन पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं राइट. और ये हमने ड्रॉबैक देख लिया. एक और ड्रॉबैक है, एक और ड्रॉबैक था. उस टाइम तक रेडिएशन की बात हो रही थी, तो रेडिएशन
का मतलब है एनर्जी, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो फोटोन के फॉर्म में होती है, फोटोन इज नथिंग बट काइंड ऑफ ए पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो अगर मान लो कहीं पे हम ऐसे मान लो ये एक प्रिज्म लगा के, है ना, यहाँ से ये लाइट जो भी निकल रही है उसको ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट पे डालेंगे, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी लाइट, है ना, ये पूरी लाइट ऐसे मिक्स थी, लेट्स से राइट नाउ दिस इज मिक्स्ड। नाउ व्हाट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, इट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड आउट एंड देन वी कैन से अच्छा कौन कौन सी एनर्जी मिली, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि इलेक्ट्रॉन तो लगातार एनर्जी लूज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेट्स से रेडिएशन, है ना, हमें हर तरह की एनर्जी मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जा रही है और ये लगातार एनर्जी लूज कर रहा है। सो व्हाट इज पॉइंटेड आउट कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन कि अगर ये ऐसा होता है तो रेडिएशन क्या मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस, है ना, स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, ये मिलना चाहिए था। बट एक्चुअल में हम देखेंगे कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस ना होके डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये अभी ये अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं पता है। सो दिस ड्रॉबैक वी आर गोइंग टू लीव इट राइट नाउ, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज कि ये कुछ ड्रॉबैक्स थे या ये कुछ पॉइंट्स थे जो उस टाइम पे रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट्स हैं जो आगे आगे चल के जब बोर ने बताया तब लोगों ने माना, है ना, कि अच्छा ये रदरफोर्ड ने कहा ये सही बात कही थी, है ना, फिर से रदरफोर्ड, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। पता नहीं कितने साइंटिस्ट हुए थे यार उस टाइम पे हिस्ट्री में, सबके बारे में थोड़ी ना पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे और बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बट हम वी आर स्टडिंग अबाउट रदरफोर्ड इज कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ कहा एंड देन लेटर ऑन इट कम्स टू ट्रू कि यार न्यूक्लियस सच में एग्जिस्ट करता है ना। उस टाइम पे तो उनकी बात काट दी गई ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है, अगर ऐसा न्यूक्लियस होगा तो वो स्टेबल कैसे होगा एटम, right? So understand this point. Now we'll come to the what is the observation. Observation we already seen कि most of the particles are going to let's say pass through the foil, है ना, it is going to be remain undeflected. Certain very few particles are going to be deflected and out of those few particles, very few particles are going to be deflected by more than 90 degree, ठीक है। तो ये deflected angle ये हो गया, दिस इज कॉल्ड थीटा, है ना, डिफ्लेक्टेड एंगल। डिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब क्या है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ना, किस अमाउंट से डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम गोइंग टू राइट फॉर रदरफोर्ड इज लेट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है that is going to be in the range of 10 to the power minus 15 meter. From the other experiment, the Rutherford has calculated radius of nucleus is going to be approximately, is going to be, or you can say radius of nucleus is proportional to a to the power 1 by 3, where a is atomic mass or mass number. So he said ki how the let's say radius of nucleus is going to be changed for other let's say other nucleus according to their mass number, and mass number की power कितनी थी 1 by 3, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे, right. What is he is able to understand कि हम एक यहाँ पे constant value लिख सकते हैं. So that constant value was, he has given it is approximately constant value है, that is given as 1.33 into 10 to the power minus 15 into a to the power 1 by 3 meter. So this is one important observation. Obviously there was some range, but okay, books में ये वाला ही value दे रखी है तो हम ये मान लेते हैं, ठीक है। In some other books the value is given from 1.2 to 1.5 कि 1.22 into 10 to the power minus 15 से 1.5 into 10 to the power minus 15 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो इन सम अदर बुक्स इट इज गिवन, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू। तो अगर मुझसे कोई कहे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ निकल, है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ निकल न्यूक्लियस, the atomic number of nickel is given as
for that not nickel, copper ले लेते हैं, है ना. So copper is given as 2964. ठीक है, let's say. And somebody is saying what is the radius of copper nucleus. So on what we are going to say कि radius of copper nucleus is going to be 1.33 into 10 to the minus 15 into, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 का क्यूब रूट, which is going to be 4. So we can calculate. So this is going to be 1.33 into 10 to the minus 15 into 4. Close to ये कितना हो जाएगा 5 point something. तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कितना साइज बढ़ेगा, राइट. सो दिस इज इन मीटर. तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना. अप्रोक्सीमेट रेडियस वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, एंड हाउ द लेट्स से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज चेंजिंग as the mass number is changing. So we can comment over it. This is given by Rutherford. Another let's say point, that is what is the volume fraction of nucleus. मतलब न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के कंपैरिजन में, क्या है उसकी औकात, है ना. तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, all those are spherical, so 4/3 pi r, let's say q divided by 4/3 pi capital R q. 4/3 कट जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एटम का होल क्यू. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वाज इन द रेंज ऑफ 10 to the minus 15. Radius of atom is in the power of 10 to the minus 10 meter. So then it is came कि ये 10 to the minus 15 times smaller है ना. ये बहुत छोटा हो गया है, 10 to the minus 15 साइज. मतलब अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ तो भी इतना छोटा है कि आई कैन नॉट इमेजिन, राइट. So it is very very small. Just to give you certain let's say idea, if I am going to say कि radius I am saying, है ना, let's say जो न्यूक्लियस है वो कॉइन के बराबर है, कॉइन के टाइप का कोई स्फीयर अगर हम लेंगे, and its let's say radius is 1 centimeter. Let's say assume कि 1 centimeter की ऐसे बॉल है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर. तो इसके कंपैरिजन में जो एटम है वो कितना है, 10 to the power 5 टाइम्स बड़ा है. ये 10 to the minus 15 है, तो एटम कितना है, 10 to the minus 10. ये 10 to the 5 टाइम्स बड़ा है. तो अगर ये 1 सेंटीमीटर, जस्ट टू अज्यूम, जस्ट टू गेट सम आइडिया कि कितना छोटा न्यूक्लियस है, कि ये 10 to the minus let's say sorry, if it is 1 सेंटीमीटर, तो जो एटम होगा वो कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 सेंटीमीटर. with respect to that, 10 to the power 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, किलोमीटर, 1000 मीटर और 1 किलोमीटर. मतलब 1 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा सा स्फीयर लो, उसमें इतना छोटा सा आपका न्यूक्लियस है, राइट. सो दिस इज जस्ट टू गेट सम आइडिया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. सो यू कैन कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से एटम की न्यूक्लियस बहुत छोटा है. ये बात कंपैरिजन समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है. तो एक तो बात ये बोली, तो ये याद रखना है ना. अनदर पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज, है ना. न्यूक्लियस कितना छोटा है, जो 10 to the minus 15 टाइम्स छोटा है, ठीक है. तीसरी बात ये बोली उन्होंने कि अगर, है ना, डिफ्लेक्टेड एंगल जो है, और यू कैन से number of deflected particles, number of deflected alpha particles, these are inversely proportional to deflected angle. ये याद हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टेड एंगल. भाई बहुत ही कम पार्टिकल्स तो, है ना, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. जितना ज्यादा अगर एंगल बढ़ता जा रहा है, डिफ्लेक्टेड एंगल, उतने कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते जाएंगे, है ना. सो डिफ्लेक्टेड एंगल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, देन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स आर गोइंग टू डिक्रीज. फ्रॉम द मैथमेटिक्स ही हैज फिगर्ड आउट दैट दिस म्यू इज नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल को म्यू से रिप्रेजेंट किया, है ना. तो दिस म्यू इज
is inversely proportional to sin to power 4 theta by 2. जैसे इसको लिख लो एज ए फॉर्मूला, कभी कभी पूछा जाता है, सो यू विल रिमेम्बर. ये इन्होंने मैथमेटिकली ही हैज डिराइव कि ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, है ना. नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी 1 upon sin to power 4 theta by 2, or you can say mu is proportional to cosec power 4 theta by 2, है ना. 1 upon sin cosec हो जाएगा mu. ठीक है. So you can write this also. This is another point. ठीक है. हाँ. सर ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या, कुछ मिस हुआ कि नहीं चेक? क्या? सॉरी सर ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या, कुछ मिस हुआ कि नहीं चेक करना था. इसके नीचे मतलब ये एटम का एग्जांपल के नीचे कुछ है और एक्स्ट्रा. ठीक है. तो ये यहाँ पे ये कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताई थी, राइट, एंड इट वाज ट्रू दैट टाइम. बट ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉबैक लिख सकते हैं. तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ बातें, आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बुक से लिख लेना, और ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, और ड्रॉबैक भी लिख लेना. हेलो ठीक है. सर. हाँ सर वो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल वो वाला थोड़ा रिपीट करो ना. वो प्रूफ नहीं हो सकता ना, नहीं क्योंकि नहीं हमें नहीं मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि कैसे आया, कितने पे गया, फिर राइट. मैथमेटिक्स थोड़ी ना है इसमें. नहीं नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है. डिफ्लेक्टेड क्या हाँ लिखा है ये वो? बोलो भाई, ये हाँ बताओ. हाँ. अगर मैंने मान लो यहाँ से बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल छोड़े, तो ये न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, तो जो इससे क्लोज होके निकल रहे होंगे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट होते जाएंगे. जो इसकी तरफ, ये इतना छोटा है, तो जिसकी इसकी बिल्कुल इसकी तरफ आने वाले पार्टिकल ही तो बस 190 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे. तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कम और ज्यादा? कम. कम, क्योंकि डिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं. अगर अगर डिफ्लेक्टेड एंगल कम है ना, मान लो 0 ही है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट. दिस इज द रिलेशन. सर. हाँ. सर ये आपने जो इधर u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin रेज़ टू 4 थीटा बाय 2, वो आपने मतलब कैसे डिराइव कैसे हुआ ये दो जो? ये तो बस हमने उनका कंक्लूजन लिख दिया, डिराइव हमने नहीं किया. ठीक है. तो जैसे हमने ये जो हमने ये कंक्लूजन डिराइव है, नहीं किया है कि देखो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 कैसे आई. वी हैव डिराइव्ड इट. नहीं ना, बस उनकी बात लिख दी कि भाई ये इनके रिजल्ट है. तो पूरा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या मैथमेटिक्स किया था, बट यस उनका मॉडल बहुत मैथमेटिकल था, और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं. अच्छा, तो ये रदरफोर्ड का ही कंक्लूजन था जो अभी. हाँ. अच्छा एक बात बताओ, अगर एक और चीज सोचो कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, अगर मान लो जिस फॉइल पे आप प्रोजेक्ट करा रहे हो अल्फा पार्टिकल, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, है ना, तो फिर बताओ डिफ्लेक्टेड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? सर बढ़ेगा. बढ़ेगा, बिल्कुल. साइज बढ़ जाएगा, मोर रिपल्शन मिलेगा. मोर रिपल्शन मिलेगा तो डिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ जाएगा. तो जस्ट इस पे एक और बात लिख सकते हैं, नोट as number of protons increases, or you can say mass number increases, right? Size of nucleus increases as well as repulsion increases. Hence, deflected angle will increase, right? And number of deflected particles alpha particles
are going to decrease. So this is just observation, है ना, कि अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, फिर उसके कारण और रिपल्शन लगेगा तो डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा. And that's how you can say number of deflected particles are going to decrease. Number of deflected particles at that theta, है ना, not overall. I'm not writing overall. ठीक है, overall deflected particles है ना, तो ये number of deflected particles at that theta will decrease. I'm not saying overall. Overall तो फिर जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे number of particles are going to, deflected particles are going to increase. तो ठीक है, ये deflected particle से मत confuse हो, deflected angle तक ही रखो ये, है ना. Let's say leave it, leave this part. So if somebody is saying कि a deflected angle क्या होगा, then you can say okay. ठीक है, तो ये तो हो गए भाई कुछ important points of Rutherford model, right? तो we have done Rutherford model. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई डाउट? तो ये पूरा पढ़ लेना है थ्योरी, एनसीईआरटी से ही पढ़ना अच्छा रहेगा, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, राइट. एंड ये आपको रदरफोर्ड का मॉडल लिखना भी है ना, यू हैव टू राइट कुछ पॉइंट्स, एक एक लाइन में, दो लाइन में आपको लिख लेने हैं, और जो हमने अभी ऑब्जर्वेशन कराए हैं वो जरूर लिख लेने हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब ये थ्योरी की जरूरत नहीं है, सो वी विल क्लोज इट. व्हाट वी हैव टू डू इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो हम थोड़ा डुअल नेचर की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट लाइट. ठीक है, EMR शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, दैट इज नथिंग बट लाइट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाइट है उसमें 3 डायमेंशन में all these electric field and magnetic fields are perpendicular to each other. And the movement or direction of light is going to be perpendicular to these two. So direction of light. So it is moving with this speed. The electric field vector are going to be perpendicular to the movement, and the magnetic field vector is also going to be perpendicular to the, let's say, both of these. So all these 3 parts are perpendicular to each other. That is the meaning of electromagnetic radiation. ठीक है, सिंपली मीन्स अगर हम समझाना चाहें तो जैसे अगर मान लो हमने एक, जस्ट टू गेट सम आइडिया, कि अगर मान लो एक डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जैसे हमने वो देखा था कैथोड रेज वाला E/M रेशियो वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या थी इस डायरेक्शन में, उसके एक परपेंडिकुलर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ था, राइट, प्लस माइनस. और अब एक लेट्स से इधर Z डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, राइट, N और S, राइट. सो लाइक दैट कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, electric field vector and the movement of, let's say, light or the direction of light are going to be perpendicular to each other. That is called electromagnetic radiation or light. ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. तो लाइट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है. ठीक है, नाउ this light shows dual nature, है ना, dual nature of light. इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? dual nature of light का मतलब क्या? These are just terms which I want to explain. तो आपको पता होना चाहिए बस. dual nature of light क्या होता है? तो वो पार्टिकल और वेव दोनों जैसे एक्ट करता है. ठीक है, तो बोला ये गया कि भाई लाइट जो है ना वो कुछ ऐसे फिनोमेना दिखाता है जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से समझाए जा सकते हैं.
और लाइट कुछ ऐसे फिनोमेना दिखाता है जो केवल और केवल वेव नेचर से दिखाए समझाए जा सकते हैं, पार्टिकल नेचर से समझाए ही नहीं जा सकते, है ना। इट्स जस्ट लाइक कि एक पर्सन है जो फुटबॉल भी अच्छा खेलता है और क्रिकेट भी अच्छा खेलता है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो फुटबॉलर भी और क्रिकेटर भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। तो ऐसे ही है लाइट, लाइट एज ए पार्टिकल भी है और वेव भी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि कौन से वाले केस में वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है लाइट। सो देयर इज टू नेचर्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब मतलब मुझे बताओ वेव नेचर का मतलब क्या है, व्हाट इज द वेव नेचर? ठीक है, एंड इट बिहेव्स एज बोथ साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि एक मूवमेंट पे पहले पार्टिकल दिखाएगा फिर वेव दिखाएगा, है ना। साइमल्टेनियसली इट इज शोइंग बोथ dual nature. So in some cases you will be observe, you can explain those phenomena on the basis of assuming this is wave nature. In some cases you are able to explain the phenomena only considering that this is particle nature. And what is the difference, which I will tell you. तो पहले समझते हैं वेव नेचर क्या है। किसी को पता है वेव क्या होता है? तो वेव बहुत तरह की होती है, मैकेनिकल वेव है, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और उसमें भी लैंगिट्यूडिनल, ट्रांसवर्सल, ऐसे सब कुछ अलग अलग रहती है। साउंड वेव अलग है और लाइट वेव अलग है, ये सब अलग अलग है। बट द सिंपली मीनिंग जो हम समझना चाहेंगे वो क्या है वेव का, कि जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा है, राइट। द पेंडुलम इज लेट्स से मूविंग इन दैट, है ना। तो वो अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, राइट। उसी तरह से अगर हम कोई साइन वेव बनाते हैं, या फिर लेट्स से व्हाट यू हैव डन इज, एक रस्सी को एक किसी हुक से बांध दिया और एक तरफ अपने एक दूसरा एंड जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, एंड देन यू आर गिविंग ए पल्स लाइक दैट, है ना। ऐसा झटका दे रहे हो, करके देखना घर में। बड़ी सी रस्सी लेना, है ना, और उसको एक उसमें एंड में बांध देना और दूसरे एंड से ऐसा पल्स देना, देन यू विल सी दैट पल्स विल मूव, है ना, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये पल्स का जो मूवमेंट है वो है क्या? एनर्जी का मूवमेंट, विच यू हैव जनरेटेड, यू हैव गिवन बाय मैकेनिकल एनर्जी, है ना, खुद से ऐसे जनरेट करके वो एनर्जी दी है। दैट एनर्जी इज मूविंग, नॉट द पार्टिकल, है ना। ऐसा नहीं है कि जब आपने मैकेनिकल एनर्जी वो एक एंड को दी थी तो वो एंड घूम के पहुंच गया वहां पे, है ना। वो एंड अभी भी आपके हाथ में ही है, बट व्हाट इज हैपनिंग, द एनर्जी इज मूविंग थ्रू दैट रो, है ना। वो रस्सी के थ्रू आपकी एनर्जी मूव कर गई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वेव नेचर का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेट्स से पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द मीडियम, है ना। मीडियम में वो ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। कुछ एनर्जी, कुछ तरह की वेव्स के लिए मीडियम जरूरी है। जैसे स्पेस में आप बोलोगे तो दूसरे को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड कैन नॉट मूव इन दैट। फॉर मूवमेंट ऑफ साउंड एनर्जी यू नीड मीडियम, ठीक है, स्पेस में नहीं होगा। बट लाइट कैन मूव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट कैन मूव विदाउट एनी मीडियम। हो क्या रहा है, वेव नेचर में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ऐसे आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो जब आपने पल्स ऐसे जनरेट किया तो एंड पे जो भी था जहाँ पे एनर्जी थी, है ना, वो बगल वाले रस्सी के पार्ट को ट्रांसफर हुई, फिर उससे वो आगे और ट्रांसफर हुई, उससे और आगे ट्रांसफर हुई। दैट्स व्हाई यू कैन सी द एनर्जी इज मूविंग, ठीक है, एनर्जी इज मूविंग, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे मूव कर रही है? मीडियम के पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। जैसे एक पॉइंट पे ये पल्स यहाँ दी, you have given the pulse, now this pulse has moved from here to here, let's say this is the end where it is fixed, so the energy has moved from here to here. The particles of here
has given or transferred the energy to another particle, फिर another particle, ऐसे ये energy move करती जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे अच्छी बात यह है कि एनर्जी के मूवमेंट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द लाइट कैन मूव थ्रू द स्पेस, but not it is only with electromagnetic radiation, not with other, let's say, mechanical wave or sound wave. They do require medium, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी हमें ऐसे याद रखनी है। But what is wave nature? Wave nature is nothing but, if I am going to say, the movement of energy from one point to another point. What is particle nature? So another thing is, wave nature is continuous. Another point which you have to remember, that is, the wave nature is continuous. तो अगर मान लो मैं लगातार ऐसे पल्स जनरेट करता रहूं, तो ऐसे लगातार एनर्जी फ्लो होती रहेगी, and that is look like this, right? So this is going to be continuous, ठीक है। लगातार एनर्जी थोड़ी थोड़ी ऐसे ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर में हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को एनर्जी देते हैं और वो पार्टिकल खुद एनर्जी कैरी करके ट्रांसफर करता है। जैसे मान लो एक बॉल है, हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दी मैकेनिकली, राइट। वो खुद वो एनर्जी कैरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मूव करते हुए जा रहा है, राइट। And wherever it is going to collide, it is going to transfer the energy through the collision, है ना। ऐसे अभी इलेक्ट्रॉन में भी तो ये देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन में हमने एनर्जी दी, उनको काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट कराया, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, है ना। और फिर वो जहां टकरा रहा है वहां पे वो एनर्जी दे रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कुछ हो रहा है, राइट, हीटिंग में कन्वर्ट हो रहा है। सो द पार्टिकल इज itself is carrying the energy, and it is the medium. The particle itself is the medium, कि one particle is going from one point to another point and supplying the energy. What is going to be? It is going to be discontinuous. यहाँ पे अगर मान लो मुझे 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी है ना, and if I am going to give the energy, let's say 1 जूल per second, एक पल्स में मैंने 1 जूल की एनर्जी दी, तो मुझे 10 जूल एनर्जी देने के लिए 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा वेव नेचर में, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 जूल पर सेकंड एनर्जी आ रही है, धीरे 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 धीरे, है ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। पार्टिकल में क्या होगा, पार्टिकल में मैंने 10 जूल एनर्जी एक ही पार्टिकल को दे दी और फिर उसको भेजा, अब वो जहां पे भी कोलाइड करेगा वो 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ऐसा, ठीक है। Particle nature is discontinuous. What is the point or term which you are going to learn over here is particle nature is discontinuous. क्या बोलना चाहिए, एनर्जी और रेडिएशन। Radiation is nothing but energy, the movement of energy, radiation, radiated, है ना। Now, which are the, let's say, phenomena which can only be explained by wave nature? And examples, let's say interference. The term is called interference. क्या होता है interference? किसी को पता है? Yes sir. बताओ सर। मैं लाइक पानी का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर एक हमने 2 रॉक फेंके पानी में और वेव जा रहा है, तो साइड करता है तो एक लाइक नया टाइप का वेव बनता है, तो वो इंटरफेरेंस है। सो इंटरफेरेंस आर ऑफ 2 टाइप. One is called constructive interference and another one is called destructive interference. So destructive interference और constructive interference का मतलब क्या है? Just assume that कि यही जो आपकी हमने अभी एक रोप ली है और उसको एक एंड पे बांधा हुआ है,
एक पल्स छोड़ी हमने, है ना, दैट इज मूविंग, और उसके तुरंत बाद एक बड़ी सी पल्स छोड़ी, थोड़ी और दम लगा के तेजी से। नाउ व्हाट विल हैपन, मान लो एक पल्स छोड़ी शुरुआत में, लेट्स से, व्हेन दिस पल्स हैज रीच्ड हियर, एक बड़ी सी पल्स छोड़ी, व्हाट विल हैपन, आफ्टर सर्टेन टाइम these both are going to merge with each other and will make a bigger pulse. ठीक है, पल्स का मतलब है छोटी सी वेव। या फिर आपने समुंदर में देखा होगा, एक वेव आ रही है, उसके पीछे से एक और बड़ी वेव आ रही है, दोनों वेव मिल जाती है और एक और वेव बना लेती है। सो दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टू वेव फॉर्म्स और टू एनर्जी फॉर्म्स आर गोइंग टू एड टुगेदर। वेव का मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी फॉर्म्स आर एडेड टुगेदर टू मेक ए न्यूअर एनर्जी फॉर्म, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, या फिर पानी वाला एग्जांपल कि मान लो एक ये स्टैंड स्टिल वाटर है, एक आपने पत्थर फेंका तो ऐसे गोल गोल ऐसे वेव बनती है विच इज गोइंग टू ट्रेवल आउटसाइड, है ना, राइट। आपने यहीं पे एक और बड़ा सा फेंका, मान लो पत्थर, है ना, विच इज गोइंग टू जनरेट मोर, लेट्स से बिगर रिपल्स, तो ये क्या होंगी, दोनों बाद में मिलेंगे और बड़ी बन जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाई इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल, तो पार्टिकल में क्या होगा, दो पार्टिकल कोलाइड होके एक नया पार्टिकल नहीं बनेगा, है ना। What will happen, two particles are going to collide, they are going to deflect in other directions, what will, है ना, so they are not going to make a bigger particle, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये पार्टिकल नेचर से नहीं समझाया जा सकता था ये फिनोमेना, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपोजिट है, मान लो, है ना, आपने क्या किया, एक एंड से यहां से पल्स भेजी और एक एंड से यहां से पल्स भेजी, लेट्स से, तो व्हाट विल हैपन, दीज बोथ आर गोइंग टू कोलाइड एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर। मान लो एक आपने बड़ी भेज दी तो ये एनर्जी इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर छोटी एनर्जी वाली पल्स बच जाएगी, है ना, मान लो, है ना, ये बड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी वाली पल्स यहाँ से छोड़ दी, तो ये क्या करेगी, इसको डिफरेंस, इतना डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि बिकॉज बोथ आर अपोजिंग ईच अदर, सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फिर यहाँ पे मान लो ये पत्थर था तो हमने दो पत्थर डाले, है ना, अलग अलग पोजीशन पे, व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू कोलाइड आफ्टर सम टाइम, ये रिपल्स ऐसे बढ़ती जा रही है, व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आ रहा है, कैन यू इमेजिन दिस पार्ट, यस और नो, कीप सेइंग यस और नो, तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सर डायरेक्शन ऑपोजिट रहते हैं, यस, डायरेक्शन सेम रहेगा तो भी चलेगा। हाँ, तभी तो कैंसिल होगा, two energy forms are going to be in opposite direction, then they are going to cancel each other, ठीक है। Now सर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या एनर्जी सेपरेट हो जाती है? सेपरेट नहीं हो जाती, एक नई एनर्जी बन जाती है, मतलब टोटल एनर्जी इज गोइंग टू ऐड टुगेदर, इस डिस्ट्रक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ तो उसमें और नए बन जाते हैं क्या बन एनर्जी, जाता है, और नए एनर्जी फॉर्म होते हाँ, हैं। नई वेव बन जाती है। तो ऐसा समंदर में नहीं देखा है, बड़ी सी लहर आती है, पीछे से एक छोटी आई, उसके पहले आगे आती रहती है, ऐसे देखा नहीं है, दो लहरें बन के फिर जब आती हैं तो और बड़ी हो जाती है, हाँ किनारे आते आते, हाँ देखा है ना। हाँ सर। हाँ, तो मतलब मुंबई में रह के कोई है समंदर नहीं देखा है तो फिर लगेगा यार। एनीवे, ठीक है, तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव भी समझ सकते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, दो पार्टिकल आए और खत्म हो गए ना, कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। सिमिलरली इंटरफेरेंस के बाद एक और जो टर्म आता है वो कहा जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई हम एक बहुत शार्प एज लें कहीं पे, है ना, बहुत शार्प, है ना, स्लिट्स टाइप की,
है ना, बहुत बहुत शार्प एज्ड लेट्स से मिरर लें, एंड देन वी आर सेंडिंग दिस एनर्जी, मान लो ये वेव फॉर्म है. So what is going to do is it is going to cut this energy, or you can say bend the energy, and you will be let's say seeing कि ये दो एनर्जी सोर्स हो जाएंगे, है ना. कैसे समझाऊं मैं, let's say imagine like this कि let's say in nature what happens, think about in nature कि जो ट्री लीव्स होती है ना उनके बहुत शार्प एजेस होते हैं, राइट. शार्प एजेस का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ लगाओगे तो खून निकल जाएगा, राइट. शार्प एजेस का मतलब है कि बहुत पतली होती है बिल्कुल, है ना, एज पे, राइट. तो मान लो ये कोई लीफ है ना, ठीक है. तो क्या होगा जब लाइट यहाँ पे इस पे गिरेगी, है ना, एज पे गिरेगी, देन इट इज गोइंग टू बेंड लिटिल बिट, तो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर ले जाएगी. यू कैन से इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफ्लेक्ट, इट इज गोइंग टू हैपन. And when this is going to happen, and that is the only reason you can say कि जो नीचे जो वेजिटेशन है उसको लाइट मिल रही है, जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट और अदर फॉरेस्ट, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, है ना, वहां पे तो नीचे वेजिटेशन सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए अगर ये वेव नेचर नहीं हो, पार्टिकल नेचर हो. पार्टिकल नेचर में क्या है, कहीं पे भी कोलाइड होगा तो डिफ्लेक्ट होके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट. राइट, रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ थिंग होगा. पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, टकराया, है ना, इट इज गोइंग टू जस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. द वेव नेचर इज द ओनली रीजन कि वो जो लाइट है वो नीचे तक भी पहुंचती है. सो डिफ्रेक्शन यू कैन अंडरस्टैंड काइंड ऑफ ए स्कैटरिंग टाइम काइंड ऑफ ए थिंग, कि लाइट कहीं गिरी और वहां से थोड़ा थोड़ा, है ना, डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होगी in the form of energy. So you can understand diffraction के बहुत अलग अलग तरीके से diffraction can be explained. Another one, let's say you can say कि diffraction को better is what you need to do is, अभी मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, type diffraction in Google and then check the videos, then you will understand थोड़ा थोड़ा, है ना. तो the term which you are going to understand that is diffraction, ठीक है, डिफ्रेक्शन. तो ये केवल और केवल वेव नेचर से समझाया जा सकता है. वेव नेचर के दो पार्ट आ गए. अब जो दो पार्टिकल नेचर के लेट्स से फिनोमेना है, दोस आर गोइंग टू बी एग्जांपल्स आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अनदर वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आपको क्या करना है, आज आपको रदरफोर्ड का मॉडल लिखना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, बस एक आध दो लाइन में, है ना. एंड यू हैव टू सर्च व्हाट इज डिफ्रेक्शन, एंड यू आल्सो हैव टू सर्च व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है. तो दैट्स इट. अब जिनको डाउट है वो रुके, बाकी जा सकते हैं. Yes, Shreyash, can you hear me? बोलो बेटा, you can unmute yourself. Hello, sir. Sir, as you said, the deflection can give beneficial to the lower vegetation. No? So, what is the confirmation that it will go down? It can go up also. What is? That deflected ray can go up also, no? हाँ, तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना एक तरह से. आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज लिटिल बिट बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, little bit, or you can say deflecting, little bit deflecting. Deflecting is not the better word is bending. सर ये रिफ्रैक्शन जैसा है. हाँ, रिफ्रैक्शन जैसा ही है.
रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीडियम से मीडियम में होता है, यहाँ मीडियम नहीं है, मीडियम के थ्रू डिफ्रैक्शन, मतलब एयर तब भी था, अभी भी एयर ही है ना, इट्स नॉट लाइक मीडियम हैज चेंज्ड। यस आकाश। सर एक्चुअली आपने कल वो मतलब लास्ट लेक्चर में आपने वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले में कुछ चेंजेस बोला था, तो वो मुझसे मिस हो गया था। तो आप रिपीट कर सकते हैं वो सेम नेचर वाला पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल एनर्जी में वो जो फॉर्मूला था ना कि Q1 Q2 अपॉन R, उसमें आपने कुछ चेंज बोला था। चेंज नहीं बोला था, जो पिछला क्या कहते हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बोल दिया था, वहां आंसर आना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बस इतना ही था। अच्छा, और सर और एक डाउट था कि एक दूसरा वाला जो केस था कि अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर के रहेंगे तो उसमें वो केस में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस वहां पे इंक्रीज नहीं होगा, वहां डिक्रीज होगा। हाँ, अपोजिट नेचर होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ, तो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो इन ऑल केसेस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। अच्छा, तो फिर उधर आपने ऐसा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंक्रीज ऐसा दिया पोटेंशियल था। एनर्जी डिक्रीज्ड, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। बोलो। Sir, I had a doubt. हाँ Sir, do we have to buy NCERT books दोनों? or state board books? अरे भाई एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो ना, कौन कह रहा खरीदने के लिए? Sir, PDF में नहीं होता है। ओके, देन यू कैन परचेज इट। व्हाट इज योर टारगेट, पहले ये बताओ। वेदर यू आर और NIT। NIT तो है ना, मतलब जेई मेन, राइट? Yes sir। तो भाई एनसीईआरटी आई, आप स्टेट बोर्ड की बुक भी खरीद सकते हो, मोर और लेस आजकल तो सेम ही लैंग्वेज है, एक आध कहीं पे कुछ पार्ट ज्यादा है, कहीं कम है बस। सो आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग टू परचेज स्टेट बोर्ड बुक, बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी रखोगे तो ठीक है, सब टू यू। ओके सर, ठीक है। सर रिफ्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू ना, मीडियम इट हैपेंस ना, तो सेम मीडियम में बेंडिंग हो रही है तो वो डिफ्रैक्शन हो रही है। श्रेय शिवम ट्रिपल एस, हाँ समझ में आया? यस, हाँ बोलो आदित्य। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में लिखा है कि रिलेटिव एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ड्यू टू इंटरैक्शन। तो वो ड्यू टू इंटरैक्शन वो नहीं समझाऊंगे भाई, किसी के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ राइट? तो ड्यू टू दिस वॉट एवर इज इफेक्ट इज हैपनिंग, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग। जैसे मान लो अगर मैं अर्थ के ऊपर एक बॉल रखता हूं तो किस ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है या नहीं उनके बीच में? तो वो इंटरेक्शन है ना, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, एक सर्टेन हाइट पे mgh आती है। That energy is stored because of the positioning between these two particles, right? Earth and the ball or anything. सर रिलेटिव एनर्जी का मतलब क्या? रिलेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, we cannot find absolute value। मतलब एग्जांपल दो ना सर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है जैसे let's say if I will say how much energy is stored in your body, how much energy is stored in your body, can I say no? I cannot say। what I can say कि वन पॉइंट ऑफ, मान लो एक काम करने से पहले और दूसरे काम, एक काम को करने के बाद तक कितना आपने वर्क किया, देन यू आई कैन टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टाइम।
ना तो मुझे इनिशियली पता थी आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, ना मुझे फाइनल पता थी. व्हाट आई नो इज whatever work you have done, that difference I know. Whatever mechanical work you have done, तो I will say कि भाई मैं इसके हिसाब से निकाल लूंगा, है ना. f dot x करके मान लो आपने कोई चीज उठाई कहीं ले गए, राइट. So I am not able to get exactly how much energy is. एक तो तरीका ये होता है डिफरेंस निकालने का, इनिशियल पता है फाइनल पता है, डिफरेंस निकाल लिया. लेकिन ना तो यहाँ मुझे इनिशियली एग्जैक्टली पता है ना फाइनल एग्जैक्टली पता है, बट मुझे डिफरेंस ही पता है ना. So that is the let's say relative. I can say कि मान लो शुरुआत में आपके पास एनर्जी थी, फाइनली 0 हो गई relatively with respect to. Then I said कि मान लो आपने 100 जूल का काम किया, तो I will say initially 100 हुई. तो यह 100 जूल किसके रेस्पेक्ट में है? फाइनल जब मैंने 0 माना है तब. Are you able to understand what I'm saying? Yes, Rohit. Sir, can you please tell what explanation did Bohr give on Rutherford model? बोर के मॉडल पे आएंगे तब बताएंगे. बोर ने एक्चुअली कुछ बातें ऐसी बोली, right? That's why the Rutherford model again, like some part of Rutherford model and some new, let's say, postulate of Bohr model was accepted. भाई अभी तक तो हमें ये पता है ना, जो रदरफोर्ड ने कहा वो सब गलत था, है ना. फिर बोर आए, बोर ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये पूरी बातें गलत नहीं है और ये रीजन है. मैक्सवेल ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं उसके रीजन यही है. ठीक है. ओके, ठीक है. थैंक यू. एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? चलें भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीक. पढ़ के आना, ठीक है. बहुत सारा टाइम है. ओके, बाय बाय.